So a very good morning BCS students. Now the next topic is templates. This is one topic in unit 4, right? So second topic, because we have already done runtime polymorphism, so we are moving to the second topic. See, this topic is two times described in the syllabus, in unit 4 also and unit 5 also. So we'll cover it one time and we'll just revise in the unit 5, right? So what are templates? See, वर्ड से ही पहले तो हम टेम्पलेट के बारे में जानते हैं. टेम्पलेट क्या, जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ. ये पीपीटी बनी हुई है, राइट? दिस इज अ टेम्पलेट. मैंने कोई डिजाइन टेम्पलेट यूज करा है और उसकी वजह से ये कलरिंग वगैरह आ गई है. मैंने तो सिर्फ नेम्स लिखा है, राइट? टेम्पलेट इज एक जनरल फॉर्मेट डिफाइंड है. अब मैंने ये C++ की पीपीटी बनाई तो मेरा ये C++ की फॉर्म में हो जाएगा टेम्पलेट, राइट? अगर आप सपोज एग्जांपल आप कोई मैथमेटिक्स या कैल या डीएस जिसकी भी पीपीटी बनाते हो तो ये उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. तो टेम्पलेट क्या है? एक जनरल फॉर्मेट. इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द inputs given to it, right? So same way जब हम C++ में templates की बात करते हैं तो these are also called as generic programming, right? So what better than having several classes than to do the same thing with different data types? यही मतलब है. देखो अब क्या हुआ, टेम्पलेट मैंने एक बना दिया and it will work with different data types. One class that lets you choose डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड इट विल एक्ट ऑन. सपोज मेरे को दो इंटीजर्स को भी ऐड करना है, दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को भी ऐड करना है, तो कोई बात नहीं, मैंने टेम्पलेट बना दिया. जब उसके अंदर इंटीजर पास होएगा तो वो इंटीजर को ऐड करेगा, जब फ्लोट पास होएगा तो वो फ्लोट को ऐड करेगा. वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा डेटा टाइप ऑफ डेटा मेंबर्स. डेटा टाइप किसका चेंज करेगा? डेटा मेंबर्स का, राइट? जस्ट राइट. So templates are a way of making your classes more abstract by letting you define the behavior of the class without actually knowing what data type will be handled by the operations of the class, right? तो हमने क्या किया, हमने बैकग्राउंड डिटेल्स तो बिल्कुल हाइड कर ली, राइट? और आपके पास सिर्फ एक टेम्पलेट बना हुआ है. अब आप उसके अंदर इंटीजर पास करोगे, फ्लोट पास करोगे, वो वैसे ही डिसीजन ले लेगा. सो इट इज एब्स्ट्रैक्ट. We are hiding the inner details, right? Background details को हमने hide कर दिया. We are just showing the essential features. In essence, this is what is known as generic programming. As I have already described, templates can also be defined as generic programming. This term is useful to think about templates because it helps remind the programmer that a templated class does not depend on the data type it deals with. The ability to have a single class, I repeat, see, the ability to have a single class that can handle several different data types means the code is easier to maintain and it makes the classes more reusable. So this is the advantage of templates also. क्या होता है? It is easier to make the code and it also makes the code reusable, right? Okay. So there are different definitions of templates. Templates are a powerful feature of C++ which allows you to write generic programs. In simple terms, you can create a single function or a class to work with different data types using templates. अब हमने एक template बना दिया, different data types पे वो work कर सकता है. Templates are a foundation of generic programming, which involves writing a code in a way that is independent of any particular type, right? A template is a blueprint or a formula for creating a generic class or a function, right? So क्या होता है template? Template is a blueprint. एक blueprint define करेगा जो generic class का है, उस पे कोई भी parameters, कोई भी data type की value डालोगे वो work करेगा. So the simple idea is to pass data type as a parameter. So that this is a very important line. इस line से ही आपको बहुत कुछ clear हो जाएगा. The simple idea is to pass data type as the parameter so that we do not need to write the same code for different data types, right? For example, a software company may need to sort for different data types. Rather than writing and maintaining the multiple codes, we can create one sort and pass data type as पैरामीटर. सी, डेटा टाइप में सॉर्टिंग में आप क्या कर सकते हो, एक हमने सॉर्टिंग के डेफिनेशन बना दी, डिफरेंट पैरामीटर्स पे वो वर्क कर सकती है.
right? Templates are often used in larger code base for the purpose of code reusability and flexibility of the programs, right? There are two types of templates: function templates and class templates, right? So by using templates we write single code for a set of related functions called function template. जब आप function के लिए कोड लिखेंगे तो it will be a function template, and for related classes कोड लिखेंगे तो it will be a class template. How you will write template, class type, declaration, right? Where type is the type of the data and declaration is either a function declaration or a क्लास डिक्लेरेशन, जो भी आप करना चाहते हैं उसके ऊपर आप लाइन में सिर्फ ये लिख देंगे टेम्पलेट क्लास टाइप, राइट? उसके बाद जैसे आप क्लास लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, थोड़ा सा चेंज है बस. इन C++ टेम्पलेट इज अ रिजर्व्ड वर्ड. रिजर्व्ड वर्ड क्या होते हैं? whose definition is already known to the compiler. The word class in the heading refers to a user defined data type. class कीवर्ड क्या करता है? user defined data type बनाता है और built-in type. टाइप इज रेफर टू एज अ फॉर्मल पैरामीटर टू द टेम्पलेट. जो भी फॉर्मल पैरामीटर आप पास करेंगे टेम्पलेट में वो होगा. जस्ट एज वेरिएबल्स आर पैरामीटर्स टू फंक्शन टाइप्स, templates are parameters to templates, right? Types are parameter to templates. So C++ adds two new keywords, right? दो नए keywords अब हम सीख लेंगे, तो template और एक type name. The second keyword can always be replaced by the keyword class. ठीक है, अब या तो हम type name लिख सकते हैं. type name क्या बता रहा है? type name word से ही पता चल रहा है कि टाइप बता रहा है, डेटा टाइप बता रहा है कि डेटा का टाइप क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, तो टाइप बताएगा. तो टाइप नेम की जगह आप क्लास भी लिख सकते हैं, राइट? सो टेम्पलेट सपोर्ट्स जेनेरिक प्रोग्रामिंग व्हिच अलाउज टू डेवलप रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स सच एज फंक्शन, क्लासेस एक्सेट्रा, सपोर्टिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स इन अ सिंगल फ्रेमवर्क. एक सिंगल फ्रेमवर्क है, एक टेम्पलेट है और डिफरेंट डेटा टाइप्स वर्क करें. A templates in C++ allow the construction of a family template function and classes to perform the same operation on different data types. The template declared for a function are called function templates and for the class are called class templates. So they perform appropriate operation depending on the data type of the parameters passed to them. ठीक है, डेटा टाइप जो पास होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा. So the first is the function template. Function templates works in a similar way as a normal function. The only difference is a single function template with different data types at once, but a single normal function can only work with a set of data types. अब ये क्या है function template और इसमें क्या difference है? अगर normal function में कि वो एक सिंगल डेटा टाइप पे वर्क करता था, while function template different डेटा टाइप्स पे वर्क कर सकता है. नॉर्मली इफ यू नीड टू परफॉर्म आइडेंटिकल ऑपरेशन on two or more types of data, you use function overloading to create two functions with the required function declaration. However, a better approach would be to use function templates because you can perform the same task राइटिंग लेस एंड मेंटेनेबल कोड, राइट? अब आप क्या कर रहे हो? सेम टास्क को फंक्शन टेम्पलेट्स के थ्रू करोगे सो दैट कि आपका रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड हो जाए, राइट? A function template start with a keyword template followed by the template parameter inside this angular brackets, right? अब ये देखो टेम्पलेट क्लास t, और ये क्लास की जगह हम टाइप नेम भी लिख सकते हैं, राइट? समवेयर इट विल बी रिटन टाइप नेम. सी जब फंक्शन टेम्पलेट लिखो तो टाइप नेम लिख दो तो आपको याद रहेगा ये फंक्शन टेम्पलेट है. जब क्लास टेम्पलेट लिखो तो क्लास लिख देना, इट वुड बी क्लियर. सो आप लोगों को डिफरेंशिएट करने में भी इजी हो जाएगा फंक्शन टेम्पलेट और क्लास टेम्पलेट. अब ये टी क्या बताएगा? ये टेम्पलेट का टाइप बताएगा. अब ये टी कब डिसाइड होएगा? जब हम पैरामीटर्स के थ्रू पास करेंगे, राइट? इन द अबव कोड टी इज द टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट दैट एक्सेप्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ data types, int, float, etc. and class is a keyword. You can also use keyword type name instead of class in the above examples. When an argument of a data type is passed to some function, compiler generates a new code of some function for a
गिवन डेटा टाइप। क्या होता है, जो भी डेटा टाइप के लिए पास होएगा उसका वो कोड जनरेट कर देगा। सो सिंटेक्स इज टेम्पलेट, क्लास टाइप एंड इट विल बी फॉलोड बाय द फंक्शन डेफिनेशन। ये कर्ली ब्रेसेस में हम क्या लिखते हैं, फंक्शन डेफिनेशन। टाइप क्या है, डेटा टाइप ऑफ अ पैरामीटर, राइट। क्लास क्या है, क्लास विल बी अ कीवर्ड, टाइप नेम, ठीक है, टाइप नेम भी लिख सकते हैं और कई जगह आपको क्लास भी मिलेगा, राइट। दिस इज एग्जाम्पल, राइट। दिस एग्जाम्पल, व्हाट दिस एग्जाम्पल इज टेलिंग, टेम्पलेट, टाइप नेम एंड टी एड। अब हमने एड इज द नेम ऑफ द फंक्शन, राइट। हम दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, num1 और num2। अब num1 और num2 का t एक डेटा टाइप है। अब देखो डेटा टाइप हम कैसे पास करेंगे, इंटीजर, इंट मेन, रिजल्ट, एड। देखो एंगुलर ब्रैकेट्स में जब मैंने इंट लिखा है तो टी में क्या पास हो गया, इंट। हर जगह जहां जहां टी है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, इंट से, राइट। अब देखो एंगुलर ब्रैकेट में मैंने पास किया डबल, तो जहां जहां रिप्लेस हो जाएगा वो डबल से टी। इज दैट क्लियर? आई होप ये अंडरस्टैंडेबल है। बहुत इजी कोड है, कुछ नहीं है। आपने ये सोचना है कि टी को एज अ आर्ग्यूमेंट है, राइट। अब वो आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप क्या होगा वो डिसाइड करेगा जब आप मेन से ये फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। मेन से अगर मैंने इंट फॉरवर्ड किया दैट मीन यहाँ पे ये देखो, ये जो ये सिर्फ इसी का रिप्लेसमेंट है। अब कंपाइलर ने क्या कोड बना दिया, हर जगह जहां जहां टी था वहां पे इंट पे चेंज कर दिया, आपका आंसर इंट आएगा। जहां जहां टी था वहां पे डबल में चेंज कर दिया। इज दैट क्लियर? तो ये आपके लिए कंपाइलर अपने आप कर रहा है, आपने तो सिर्फ लिख दिया कि मैंने टेम्पलेट या जेनरिक प्रोग्रामिंग लिखी है, राइट। दिस इज अनदर एग्जाम्पल, राइट। दिस इज जस्ट कैलकुलेटिंग मैक्सिमम ऑफ अ नंबर in the form of int also and in the form of character also, right. In this case character will be converted to their ASCII values, right. This is another example of function template, right. Swapping, देखो ये स्वैपिंग किस पे कर रहा है, अब ये देखो यहाँ पे मैंने टाइप नेम लिखा है, यहाँ पे क्लास लिखती तो भी वर्क करेगा, टाइप नेम लिखूंगी तो भी वर्क करेगा, राइट। सेम बिल्कुल, बस हर जगह जहां जहां डेटा टाइप लिखना था वहां वहां टी लिख दिया, ये देखो ये रहा टी, राइट। अब हमने जब इंटीजर जब यहाँ पे इंट मेन में हम पास करेंगे स्वैप i1, i2, तो इंटीजर पास करा तो वो ऑटोमेटिकली क्या ले लेगा, इंटीजर। हमने फ्लोट पास करा तो फ्लोट ले लेगा, हमने करेक्टर पास करा तो वो करेक्टर वाला कॉल कर लेगा। इज दैट क्लियर? So this is the function. This is the another important question that is asked in the university exam, that is bubble sort. Bubble sort पे template function कैसे वर्क करता है, कुछ नहीं है, जैसे आप करते हैं bubble sort वैसे ही करिए, सेम वही सिस्टम है bubble sort का। The only difference is जहां आपने arguments पास करे वहां पे आपने t लिख दिया, राइट। array का टाइप टी लिख दिया, राइट। और यहाँ पे हमने टी लिख दिया क्लास टाइप, राइट। बाकी पूरा सेम है, कोई चेंज नहीं है, जैसे आप बबल सॉर्ट लिखते हैं, राइट, डेटा स्ट्रक्चर में सेम वैसे लिखना है, कोई चेंज नहीं है, राइट। सेम वे लार्जेस्ट नंबर, यू हैव टू वर्क ऑन ऑल द कोड्स, कुछ नहीं है। टेम्पलेट्स की जगह जहां जहां लार्जेस्ट ऑफ नंबर निकालना है, क्या करा है हमने, बस जहां जहां फंक्शन की जगह पास करना था वहां वहां हमने डेटा टाइप की जगह टी लिख दिया। दैट मीन्स जब हम यहाँ से पास करेंगे आर्ग्यूमेंट्स वो अपने आप चेंज कर लेगा, राइट। नेक्स्ट इज दी क्लास टेम्पलेट्स। सो क्लास टेम्पलेट्स आर बिट डिफरेंट, ठीक है। क्लास टेम्पलेट में अब हम क्लास का टेम्पलेट बना रहे हैं, अब हम फंक्शन पे वर्क नहीं कर रहे हैं, अब हम क्लास पे वर्क कर रहे हैं। सेम वे, बस सेम वे क्लास के डिक्लेरेशन से पहले लिख देंगे, राइट। So you can create class template for generic class operations. अब generic function operation के लिए function templates होते थे और class operations के लिए we have class template. Sometimes you need the class implementation that is the same for all the classes. Only the data types used are different. Normally you would need
to create a different class for each data type. आपको different classes create करनी पड़ती है. अब आपको different नहीं create करनी पड़ेंगी, आप एक class से work कर सकते हो. For example, see, sometimes we need a class implementation that is same for all the classes. Only data types used are different. Normally you would need to create a different class for each data type or create different member variables and function within a same single class. This will unnecessarily bloat your code base and will be hard to maintain, as a change in one function should be performed on all the classes or functions. However, class template make it easy to reuse the same code for all data types. How to declare a class template? This is the way to declare a class template. Template class T is the type जो आप पास करेंगे. क्लास नेम, जहां जहां आप T का यूज करना है, दैट मीन्स डेटा टाइप चेंज करना है, वहां आप T का यूज करें. इन द अबव डिक्लेरेशन T इज अ टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट विच इज अ प्लेस होल्डर फॉर अ डेटा टाइप यूज. जहां जहां आप T यूज करेंगे वो रिप्लेस हो जाएगा कोड से, राइट. सो दिस इज जस्ट अब क्लास, डेटा टाइप, क्लास ऑब्जेक्ट, जो भी आप पास करोगे वो होल्ड कर लेगा. दिस इज द एग्जाम्पल. सी क्लास में हमने T बनाया, दो वेरिएबल्स है num1 एंड num2. अब हमने यहाँ पे int पास किया तो दोनों का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, चेंज int. दिस इज हाउ यूल पास. ये रहा कि ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन से पहले आप पास करेंगे, राइट. दिस इज द अनदर एग्जाम्पल विद टू जेनेरिक डेटा टाइप्स. अब दो पास करने हैं तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, क्लास T1 एंड T2, where T1 will be replaced by the first argument and T2 will be replaced by the second argument जो आप पास करेंगे, राइट. दिस इज द डिफरेंस, राइट. अब जहां जहां T1 यूज होएगा वहां वहां int यूज चेंज हो जाएगा और जहां T2 यूज हो जाएगा वहां वहां फ्लोट चेंज हो जाएगा, राइट. So this is a simple example of class calculator जिसमें डिफरेंट टाइप से कैलकुलेशंस परफॉर्म हो सकती हैं. अगर इंटीजर, ऐड, सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, अब डिफरेंट है, राइट. लेकिन हमने आर्ग्यूमेंट क्या पास किया, रिटर्न टाइप T, तो डिपेंडिंग ऑन द T वो आपका पास हो जाएगा. देखो अगर int पास किया हमने, राइट, दैट मीन्स इट विल बी कन्वर्टेड टू इंटीजर. रिटर्न टाइप विल बी कन्वर्टेड टू इंटीजर. अगर हमने फ्लोट पास किया तो फ्लोट, अगर हमने डबल पास करते हैं तो डबल, राइट. तो ये चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी डेटा टाइप्स. अब देखो कैलकुलेटर में मैंने यहाँ पे इंटीजर पास कर दिया, यहाँ पे फ्लोट पास कर दिया, कैलकुलेशन तो वही हो रही है, कैलकुलेशन तो यहाँ पे रिजल्ट तो वही आएगा, बट यहाँ पे पासिंग चेंज हो गया, राइट. सो दिस इज द एग्जाम्पल डिटेल्ड, कैसे एग्जाम्पल वर्क कर रहा है, राइट. दिस इज दी अनदर एग्जाम्पल ऑफ क्लास टेम्पलेट यू कैन वर्क ऑन. एक एरे डिक्लेयर किया है, अब हम इसमें एरे का टाइप चेंज कर रहे हैं, राइट. तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे फिर से एरे के टाइप से पहले हमने T डिक्लेयर कर दिया. T क्या है, जो हम मेन से पास करेंगे. अब हमने मेन पे क्या पास किया, int. दैट मीन्स ये एरे किस टाइप का हो गया, इंटीजर टाइप का हो गया. एक सिंपल बात, जहां जहां आप डेटा टाइप यूज कर रहे हैं वहां वहां T यूज कर दीजिए और डेटा टाइप को मेन में पास कर दीजिए, राइट. So this is another example for finding a larger number, right. So function templates and class templates both can be used, right. Function templates is used to perform the reusability of function and class is used to perform different class operation, right. In both the case parameterized types are passed and it will be replaced by the template T, right. We can use type name and class, both means same, right. Okay, thank you, have a nice day.